देर रात लगभग 1:45 बजे न्यू अलीपुर रेलवे स्टेशन के पास 113 चेतला लॉ गेट के पास रेलवे ट्रैक के किनारे स्थित एक बस्ती में भीषण आग लग गई। ये इलाका नंदीग्राम के नाम से जाना जाता है। ये चेतला पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। मौसम की खराबी के कारण आग तेजी से आसपास की झोपड़ियों में फैल गई, जिससे उक्त इलाके की झोपड़ियां आग की चपेट में आ गई। विभिन्न अग्निशमन केंद्रों से 5 अग्निशमन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के तत्काल प्रयास किए गए। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार सुबह करीब 4:15 पर आग पर काबू पा लिया गया। 45 से 50 प्रभावित परिवारों को फिलहाल स्थानीय क्लबों में रखा गया है और आवश्यक मानवीय सहायता की व्यवस्था प्रदान की जा रही है। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। हालांकि नहर के किनारे 500 मीटर तक फैले क्षेत्र में झोपड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। Ramapto Chatterjee Memorial Art and Music College, Kola Bharati, Painting, Sculpture, Bharatnatyam, Kathak, Manipuri और रविंद्र नृत्य एडमिशन चलছে। Admission open for degree and diploma courses. Kola Bharati, NSB Road, Raniganj. Call 993224. आगामी 7 जनवरी को डीवाईएफआई की ओर से कोलकाता में होने वाले ब्रिगेड को सफल बनाने के लिए आज जामुड़िया डीवाईएफआई की ओर से शिवपुर मोती बाजार से एक बाइक रैली निकाली गई। ये रैली जामुड़िया बोरो के अंतर्गत 13 वार्डों का भ्रमण कर दामोदरपुर सीपीएम वेस्ट अजय जनरल पार्टी कार्यालय के पास समाप्त हुआ। इस मौके पर बुद्धदेव रजक, विकास यादव, प्रदीप पावरी, मुन्ना आहिर, मोहम्मद अशफाक, चलितर पासवान, करुणामयी रुईदास, सुबोध दास, शेख हैदर, विनय पासवान, उज्जवल चैटर्जी उपस्थित रहे। আমাদের যে বাইক মিছিল যেটা হচ্ছে সেটা মূলত আমাদের আগামী 7ই জানুয়ারি রবিবার দিন আমাদের ব্রিগেড সমাবেশ রয়েছে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। আপনারা জানেন যে আমাদের যে ইনসাফ যাত্রা প্রায় 2910 কিলোমিটার পায়ে হেঁটে 50 দিন ধরে গোটা পশ্চিমবাংলা একেবারে আমাদের যতগুলি জেলা আছে প্রত্যেকটি জেলার মধ্য দিয়ে আমাদের পায়ে হেঁটে এই ইনসাফ যাত্রা চলেছিল এবং এই ইনসাফ যাত্রা আমাদের পশ্চিমবাংলায় যা পরিস্থিতি, যেরকমভাবে বিভাজন করা হচ্ছে, বেকার ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থান নেই, নতুন করে কোনো শিল্প কারখানা হচ্ছে না, শিক্ষিত বেকাররা রাস্তায় বসে আছে, ছাত্রছাত্রীরা পঠন পাঠন করার উপযুক্ত পরিবেশ পাচ্ছে না, মিড ডে মিলের যা বাচ্চাদেরকে দেওয়া দরকার সেই ডিমও গায়েব হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যাদেরকে আমরা দায়িত্ব দিয়েছিল গোটা পশ্চিমবাংলার মানুষ সরকারটাকে চালানোর, তারা শুধু চুরিতে লিপ্ত এবং একের পর এক শুধুমাত্র জেল যাত্রা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গবাসীর কোনো উন্নয়ন হচ্ছে না। ছেলে মেয়েদের বেকারে ভরে গেছে, সবাই পরিযায়ী শ্রমিক হচ্ছে, বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে আমরা আমাদের এই যে ব্রিগেড সমাবেশ আগামী যে 7ই জানুয়ারি সেটা আমরা করতে যাচ্ছি। আর আজকে আমরা যে বাইক র্যালিটা করছি জামুড়িয়া পৌর এলাকা 13টা ওয়ার্ডে আমরা এই প্রচার করছি, মানুষকে আবেদন করছি যে আগামী 7ই জানুয়ারি যে যেভাবে পারবেন বাসে চলুন, ট্রেনে চলুন, নিজের ব্যক্তিগত গাড়িতে চলুন, যেভাবে চলুন কিন্তু প্রত্যেকে চলুন। কেননা এটা আমরা মনে করছি যে যৌবনের ডাকে আমরা যারা যুবক আমরা ডাক দিয়েছি এবং এই ডাকে জনগণের ব্রিগেড অর্থাৎ জনগণ এই ব্রিগেড করবে। আপনারা নিশ্চিতভাবে জানেন যে আমরা এলাকায় এলাকায় প্রত্যেককে আমরা একটা করে ভাড় দিয়েছিলাম। মানুষ অল্প হলেও যা দিয়েছেন সেই অর্থ দিয়েই আমাদের ব্রিগেড সমাবেশ হবে এবং আজকের যে ব্রিগেডের প্রচারের যে আমাদের যে বাইক র্যালির যে খরচা সেটাও আমাদেরকে মানুষ তুলে দিয়েছে, যে যা পেরেছে, কেউ চাল দিয়েছে, কেউ ডাল দিয়েছে, কেউ তেল দিয়েছে। এইভাবে আমরা আমাদের এই ব্রিগেড সমাবেশকে সফল করব। এই আবেদন নিয়ে আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি আমাদের গোটা জামুড়িয়া পৌর এলাকায়। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় হচ্ছে বুদ্ধদেব রজক, আমি রাজ্য কমিটির সদস্য এবং আমাদের জামুড়িয়া অজয় পশ্চিম আঞ্চলিক जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। Ramapto Chatterjee Memorial Art and Music College, Kola Bharati, Painting, Sculpture, Bharatnatyam, Kathak, Manipuri और रविंद्र नृत्य एडमिशन चलছে। Admission open for degree and diploma courses. Kola Bharati, NSB Road, Raniganj. Call 993224. ईडी की छापेमारी जारी है और इसी कड़ी में बनगांव नगर पालिका के पूर्व नगर पालिका प्रमुख शंकर आड़ा के बनगांव शिमुलतला स्थित घर पर ईडी ने आज छापा मारा। शंकर आड़ा के साथ उनके ससुर के घर, भाई मलाया आधा की आइसक्रीम फैक्ट्री और शंकर आड़ा के कर्मचारी अमित घोष के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की। सुबह करीब 7:30 बजे ईडी के अधिकारियों ने सीआरपी जवानों को साथ लेकर यह छापेमारी शुरू की। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ईडी यह छापेमारी किस लिए कर रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से आज 13वीं खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तमाम अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के आयोजन का मकसद पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को एक मंच प्रदान करना है, जिससे कि वो अपने अंदर की छुपी खेल प्रतिभा को उजागर कर सके और अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर अपनी क्रीड़ा प्रतिभा को सबके सामने उजागर कर सके। আজকে আমাদের আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট 13th অ্যানুয়াল স্পোর্টস মিট ওপেন হয়েছে, স্টার্ট হয়েছে। 2 দিন ধরে এটা চলবে। বেসিক্যালি আমাদের পুলিশের তো চাকরির মধ্যে আমরা খুব কম টাইম পাই, সবসময় ব্যস্ত থাকি ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে বা বিভিন্ন যে প্রোগ্রাম আছে সেটা নিয়ে। তো এই 2 দিন ধরে আমাদের যারা পুলিশ কর্মী আছে, পুলিশের ফোর্স অফিসার যারা আছে, তারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পার্টিসিপেট করে এবং যারা মানে নিজেকে আমরা একটা মোটিভেশন ওরা পায় কি নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য যেন ওরা সবসময় এঙ্গেজ থাকে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। সমাপ্ত চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল আর্ট অ্যান্ড মিউজিক কলেজ, কলা ভারতী, পেইন্টিং, স্কাল্পচার, ভারতনাট্যম, কথক, মণিপুরি ও রবীন্দ্র নৃত্যে অ্যাডমিশন চলছে। Admission open for degree and diploma courses. Kola Bharati, NSB Road, Raniganj. Call 993224. बांग्ला पोखो की तरफ से आज आसनसोल रेलवे स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके उपरांत आसनसोल रेलवे डिवीजन के DRM को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के नेता अक्षय बैनर्जी ने कहा कि जिस तरह से रेलवे विभाग द्वारा बांग्ला भाषा के साथ अन्याय किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया गया और DRM को एक ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उनके संगठन द्वारा रेलवे से मांग की गई थी कि आसनसोल रेलवे स्टेशन में ডেপুটেশন এবং প্রতিবাদ সভা। দেখুন, এই যে রেল বারবার করে বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ করে, রেলের বারবার করে বাংলা ভাষার উপর বঞ্চনা। আমরা আগেও রেলের সমস্ত বোর্ড যে বাংলায় ছিল না, আমরা তার প্রতিবাদে আমরা ডিআরএমকে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম, আমরা আন্দোলন করেছিলাম 2019 সালে। তখন সমস্ত বোর্ড বাংলায় এসেছিল। আবার রেল একইভাবে এই সমস্ত দেখতে পাচ্ছি আসানসোলে যে ডিসপ্লে বোর্ডগুলো, সেখানে হিন্দি এবং ইংরাজি, বাংলা নেই, বাংলাকে হাটিয়ে দিয়েছে। তার প্রতিবাদে আজকে আমাদের বাংলা পক্ষ পশ্চিম বর্ধমান থেকে আসানসোল ডিআরএমকে আমরা ডেপুটেশন দেবো। আমরা আসানসোল স্থানে বিক্ষোভ আমরা করব। তবে এখান থেকে আমরা ডিআরএম অফিস যাব, আমরা ডিআরএমকে আমরা জানাবো যে আপনারা বারবার করে বাংলা ভাষার উপর আপনারা কেন আক্রমণ করছেন, বারবার করে বাঙালির উপর কেন আক্রমণ করা হচ্ছে। যারা বাঙালি, যারা এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা, এটা বাংলা, এটা ইউপি বিহার নয়। আমাদের বাংলা ভাষার জন্য আমাদের আজকে আন্দোলন করতে হচ্ছে, এটা লজ্জা। আজকে আমরা রেলকে আমরা ধিক্কার জানাই যে আপনারা বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ করছেন, এর আমরা জবাব চাই। কেন বারবার করে বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ করা হবে? জয় বাংলা। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी।
हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय NSP रोड रानीगंज रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में नौकरी के बदले करोड़ों रुपए वसूली के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बुधवार रात अचानक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के साथ मुख्य आरोपी सुजय कृष्ण भद्र को उनके आवास का नमूना परीक्षण करने के उद्देश्य से SSKM मेडिकल कॉलेज अस्पताल से निकालकर केंद्र संचालित ESI अस्पताल ले जाया गया। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि ESI अस्पताल में उनकी चिकित्सकीय जांच के बाद एक अलग कमरे में लेकर जाकर आवाज के नमूने रिकॉर्ड किए गए हैं। रात भर ये प्रक्रिया चलती रही और सुबह 3:20 उन्हें वापस SSKM अस्पताल पहुंचाया गया। बुधवार रात के समय प्रमुख जांच अधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्रा और मुकेश कुमार के नेतृत्व में ईडी की टीम बुधवार की रात करीब 8:30 बजे एम्बुलेंस से SSKM पहुंची। कार्डियोलॉजी विभाग में भद्र को केबिन के बाहर तैनात CAPF कर्मियों के साथ ईडी अधिकारी कमरे में दाखिल हुए। बाधा बनने की कोशिश कर रहे थे सरकारी अस्पताल के अधिकारी। सूत्र ने बताया कि राज्य के सरकारी अस्पताल के अधीक्षक सहित अन्य चिकित्सकों ने इसे लेकर रोड़ा बनने की कोशिश, लेकिन ईडी ने साफ कर दिया कि कोर्ट का आदेश है कि जो कोई भी बीच में आएगा उसे हिरासत में लेकर जाएंगे। इसके बाद काकू को CISF अस्पताल ले जाने का रास्ता साफ हुआ। रात के 9:30 के करीब ईडी की टीम उन्हें लेकर ESI जोका के लिए रवाना हुई। संयोग से बुधवार दोपहर को ESI अस्पताल का एक चिकित्सा विशेषज्ञ भद्र की आवाज के नमूने के जांच के लिए आवश्यक संभावित समय के बारे में ECL न्यायाधीश पीठ को जानकारी देने के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय में मामले की बंद कमरे में सुनवाई के दौरान उपस्थित था। वही रात के 9:20 में ईडी अधिकारियों ने CAPF कर्मियों के साथ भद्रा SSKM से बाहर आए और अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में चढ़ गए। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्र ने बताया कि ESI अस्पताल में भद्रा की आवाज का नमूना परीक्षण करने की सभी तैयारियां हो चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नवजात बेटी की मां की मौत को लेकर दुर्गापुर में तनाव है। दुर्गापुर इस्पात नगर के नागार्जुन बस्ती निवासी चुमकी बावरी को प्रसव पीड़ा के कारण कल दुर्गापुर उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां सिजेरियन सेक्शन से बेटी का जन्म हुआ और सुबह उनकी मृत्यु हो गई और परिवार ने शिकायत की तो पुलिस ने तुरंत शव परिवार के पास ले गए और नागार्जुन बस्ती भेज दिया। फिर तो उत्तेजना फैल गई। परिवार ने कहा कि लड़की की मां स्वस्थ है, लेकिन वो अचानक हुई इस घटना के पीछे का कारण जानता है। परिवार ने कहा कि लड़की की मां स्वस्थ है, लेकिन वो अचानक हुई इस घटना के पीछे का कारण जानना चाहते हैं। नागार्जुन झुग्गी बस्ती में झुग्गी वासियों ने बिजन चौकी पुलिस का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। इलाके में तनाव व्याप्त है। আপনারা পুলিশকে আজকে বিক্ষোভ দেখালেন কেন? কালকে রাতে আমার বউকে ভর্তি করেছি বিধাননগরে। সিজার হয়ে বাচ্চা হয়েছে, বউকে বেড়ে দিয়েছে, বউ ভালো ছিল, বাচ্চাও ভালো ছিল। ওই দেখে আমি বাড়ি এলাম। হঠাৎ রাত্রিবেলা ফোন করে যে আপনার বউ খুব সিরিয়াস অবস্থা। গিয়ে করে দেখি আমার বউ বেডে নেই, বউকে আইসিইউতে দিয়েছে। ডাক্তারবাবুর সাথে কথা বলতে গেলাম, ডাক্তারবাবু বলছে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলবো না, দাঁড়ান একটু ওয়েট করুন। কিছুক্ষণ পর ডাক্তারবাবু এসে করে হঠাৎ করে বলে যে আপনার বউয়ের খুব ক্রিটিক্যাল অবস্থা, এই দেখুন এই ব্লাড এগুলো লাগবে, আপনি করেন জোগাড় করুন। আমি ওইগুলো নিয়ে করে ব্যবস্থাপনায় লেগে গেলাম, কিন্তু ওই ব্লাড ওনারা যে রিপোর্ট যে ব্লাডটা দিয়েছে লিখে, ওই ব্লাডটা ওই বিবেকানন্দ হসপিটাল থেকে বলছে আমি মিলাতে পারছি না। বলছি তুমি ভালো করে লিখে নিয়ে আসো, কি ব্লাডটা ভালো করে দিতে বলো, যাতে আমি স্যাম্পলটা বুঝতে পারি, সঠিক ব্লাডটা দিতে পারি। এসে ওনাকে বললাম, ওনারা ওইটা নিয়ে নিল। তারপরে ব্লাডে কোনো গল্পই হলো না, রেখে দিল। ওরা বলছে ঠিক আছে তোমাকে কিছু করতে না, তুমি সাইডে বসো, তোমাকে ডাকলে আমরা ডাকছি। 1-1.5 ঘন্টা পর আবার দরজাটা খুলে বলে তুমি আসো, ডাকলো নি, ডেকে বলে তুমি এখানে সই করো, তোমার বই খুব ক্রিটিক্যাল অবস্থা, সেই সত্য জেনেও আমাদের কাছে তুমি ফেলে রেখেছো, যদি কিছু হয় তার দায়িত্ব যেন আমরা না হয় এরকম বলতে যাই। আমি বললাম আমি এখন লিখতে পারবো না। কেন বলছি দেখো তুমি লিখলে আমার ট্রিটমেন্টটা শুরু করবো। নিয়ে করে আমাকে 2-4 জন অনেক স্যার অনেকগুলো মানে ডাক্তারবাবু ছিল, ওনারা বললো যে এটা তোমার ভালোর জন্যই বলছি, তোমাকে এটা লিখতে হবে, তাতে তোমারই সুবিধা। সেই আমি লিখলাম, লেখার পর আমি তো লিখে দিলাম। তারপর বলছি ঠিক আছে তোমরা বাইরে বসো, আমি তোমাকে বলছি। ওরা ট্রিটমেন্ট করছে।
মোটামুটি 3টে সাড়ে 3 নাগাদ গেট বন্ধ করেছে, তারপর থেকে আমাদের কোনো খবর দেয়নি। সকাল 8টা রাত 3টে রাত 3টায় গেট বন্ধ করেছে, সকাল অবধি কোনো খবর দেয়নি। 8টা সাড়ে 8টার সময় আমাকে বিধাননগর ফাঁড়ি এক বড়োবাবু ফোন করলেন, বললেন যে তুমি বাবুবাবুরি? আমরা হ্যাঁ। বলে শিগগিরি এসে বিধাননগরে এমার্জেন্সিতে দেখা করুন। নিয়ে হলো স্যার আপনি কে? বলছে আমি বিধাননগরের ফাঁড়ির অফিসার। স্যার কী হয়েছে বলুন। বলছে আপনার কি হসপিটালে কেউ নেই? আমার মা আছে। বলছে তাহলে মাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করুন। স্যার আপনি কিছু বলতে পারবেন না? বলছে আপনি আসুন দেখা করুন, তবেই তো বলবো। তারপর গিয়ে কি দেখলেন? গিয়ে দেখলাম আমার মা গিয়ে দেখি সিসিউর সামনে গিয়ে কাঁদছে দেখে আমি তো ভেঙে বুঝতে পারলাম যে কিছু হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। মা কাঁদছে কেন? মা বলছে না আর কিছুই নেই, নেই। আমি সেই দেখে আমার মা আমি শুরু করে দিচ্ছি। তারপর জানতে পারলেন যে মারা গেছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। भाजपा का दावा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बार फिर तृणमूल और CPM में फूट पड़ गई, जिसके चलते ही करीब 100 परिवार दोनों पार्टियों को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी ने बांकुड़ा के गंगाजल घाटी ब्लॉक के गोविंद धाम इलाके में एक पार्टी कार्यक्रम में पार्टी के नवांग तुकों को भाजपा का झंडा सौंपा। हुगली से सांसद लॉकेट चैटर्जी शाम को बांकुड़ा के गंगाजल घाटी ब्लॉक के गोविंद धाम में एक पार्टी कार्यक्रम में मौजूद थी, जहां तृणमूल संचालित विष्णुपुर पंचायत समिति के पूर्व उपाध्यक्ष शमीक पाल और CPM के पूर्व स्थानीय समिति सदस्य दयामय सिंह के नेतृत्व में गोविंद धाम क्षेत्र के लगभग 100 परिवार भाजपा में शामिल हुए। तृणमूल से भाजपा में शामिल हुए विष्णुपुर पंचायत समिति के पूर्व उपाध्यक्ष ने दावा किया कि तृणमूल में कोई नैतिकता नहीं है, कोयला चोरों रेत चोरों की भरमार है। वह चोरों के गिरोह में शामिल होने के बजाय राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वही तृणमूल के जवाबी दावा तृणमूल की भाजपा के साथ नीतिगत लड़ाई है। अगर पार्टी के अंदर कोई गुस्सा है तो इसकी जानकारी पार्टी को ही दी जा सकती है। अगर कोई ऐसा किए बिना भाजपा में शामिल होने का फैसला करता है तो ये वास्तव में नैतिक विचलन के अलावा कुछ नहीं है। আপনি আজকে কি করলেন? আমি আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যুক্ত হলাম। কেন? তার কারণ হচ্ছে মোদিজির যে বা অমিত শাহজির যে কাজ, সেই কাজ আমার ভালো লেগেছে এবং আমরা বামপন্থীতে বিশ্বাসী ছিলাম। আমি এই বয়সকালে দেখলাম যে ভারতীয় জনতা পার্টিটা দ্বিতীয়ত যে সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী বা নরেন্দ্র মোদীজি বা অমিত শাহজি যে কাজটা করলেন এই 2 রাউন্ডে, সেটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বা ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আর কোনো প্রধানমন্ত্রী করতে পারেননি। পন্থী দল করছে এই কারণে, মানে রাজনীতি মানে যদি দেশ সেবা হয় বা জনগণকে। আজকে যোগদান করলেন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে, কেন? দেখুন, দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলটা করেছি। একদম যখন মমতা দিয়ে কিছুই ছিল না, আমাদের ভেরি বিগিনিং আমরা তৃণমূল করেছি। আমরা লড়াই করে 2011 ক্ষমতায় এসেছি, 2016তেও এসেছি। এখন দেখছি এত চোর ছেচর, বালি চোর কয়লা চোর থেকে শুরু করে কোনো নৈতিকতা নেই দলটা। স্বাভাবিকভাবে আমি একজন শিক্ষক হিসেবে মনে করেছি যে এই দলটা ছাড়া দরকার। আমরা CPM-এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম, CPM-এর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সিমিলার কেস একই রকম চলে এসছে, সেই জন্য আমরা মনে করেছি যে অনেক বেটার অপশন যারা জাতীয়তাবাদের উপর কাজ করছে, দেশাত্মবোধ যাদের। অনেক দল থেকে 184 জন আমার কাছে মনে হয়, 184টা পরিবার, কারণ কেউ তৃণমূল কংগ্রেস করতে চাইছে না। আমার মনে হয় ব্রাত্যবাবু বা অন্য কেউ অ্যারেস্ট হবে, তাই সবাই বলছে যে না আর যাই করি আর তৃণমূলটা করবো না। হতে পারে, সম্ভাবনা আছে, তো তাই তো দেখতে পাচ্ছি। সেক্ষেত্রে এই জয়েনিং এর কি পদ্ধতি? মানুষ চাইছে না, মানুষ যে চারদিকে চোরে ভর্তি, তো তাই আমরা বিজেপির সঙ্গে থাকবো। অনেকে তো CPM থেকেও এসছে আপনাদের। হ্যাঁ, CPM সবাই চাইছে যে তৃণমূলকে হটাতে। এই ব্লকের একটা মানুষের উদ্দেশ্য একটাই যে তৃণমূলকে কংগ্রেসকে হটায়। সেক্ষেত্রে লোকসভা ইলেকশন কতটা শক্তিশালী হলো দল? দেখুন, আমি একটা কথা খুব পরিষ্কার বলি, লোকসভা ভোটে প্রত্যেকটা বুথই থেকে যদি 50 জন করে লোক যোগদান করে, এটা আমরা শক্তিশালী অবশ্যই। সেক্ষেত্রে এই যোগদানটা কিছুটা কাজে লাগবে নিঃসন্দেহে। যে কোনো যোগদানই দলের সমৃদ্ধি হয়। दूसरी ओर CPM से बीजेपी में शामिल हुए स्थानीय समिति के पूर्व सदस्य दयामय सिंह के दावा है कि प्रधानमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसके कारण वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। পাচ্ছিলাম বলছে তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে আমরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে আজকে এসেছি, কারণ দলটা আজকে বিপদগামী হয়ে গেছে। তো আমি এই দুটো কথা বলি, আমার এই রাজনৈতিক জীবন 50 বছরের উপর হয়ে গেল। আমি প্রথমে কংগ্রেস করতাম, তারপর কংগ্রেসের হাত ধরে, মমতা ব্যানার্জির হাত ধরে আমি তৃণমূল কংগ্রেসে এসেছি। তো আমরা যারা কংগ্রেসই করতাম, আমাদের প্রথম থেকে যে ভাবনা ছিল, চিন্তা ছিল, যে আদর্শগত লড়াই ছিল বিজেপির সঙ্গে, যে একটা সাম্প্রদায়িক দল যার পেছনে RSS আছে, সারা ভারতবর্ষকে তারা বিপদগামী করতে চাইছে, ধর্মান্ধতার পথে নিয়ে যেতে চাইছে।
এই লড়াইটা কংগ্রেস করে গেছে এবং এখনও করছে। আমরা তৃণমূল কংগ্রেস তার থেকে তো বিচ্যুত হয়নি, আমাদেরও কিন্তু একই ভাবনা, একই চিন্তা, একই রয়েছে। আমি ধরে নিচ্ছি তিনি কোনো কারণে হয়তো কোনো জায়গায় স্থান পাননি বা কোনো জায়গায় তার মনে দুঃখ হয়েছে, কষ্ট হয়েছে, সবই হয়েছে। কিন্তু ঠিক আছে, সেটা তো দলের ফোরাম আছে, আপনি বলুন না। আমাদের দলের একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আছে, যার যা অভিযোগ আছে সব জায়গায় আমরা বলতে পারি। এটা সিপিএম পার্টির মতন দল নয় যে যা বলে দিল সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। তো স্বভাবতই তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যখন বিজেপিতে গেছেন, তাহলে বলে তো তিনি আদর্শচ্যুত তো হয়েই গেছেন। কারণ তিনি যদি সত্যিকারই তৃণমূল কংগ্রেস করে থাকেন, আর যাই করুন না কেন, কখনোই বিজেপিতে জয়েন করতে পারতেন না, কারণ বিজেপির সঙ্গে আমাদের আদর্শগত নৈতিকগত আমাদের বিরোধ আছে। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नशेड़ी पति को स्वस्थ जीवन में वापस लाने की कोशिश में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के नरेंद्रपुर थाना क्षेत्र के एक गृहिणी तांत्रिक के हाथों बलात्कार का शिकार होने से बच गए। बताया जाता है पड़ोसी मणि प्रामाणिक नामक महिला की मदद से गृहिणी तांत्रिक के पास पहुंची। तांत्रिक ने महिला से 15,000 रुपए की मांग की। काफी बातचीत के बाद 5,000 रुपए पर सहमति बनी। तांत्रिक ने महिला के पति और बच्चे को दूसरी जगह रहने का आदेश दिया। बाद में तांत्रिक ने गृहिणी के अकेले होने का फायदा उठाकर खाली कमरे में उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। तांत्रिक की इस हरकत के बाद गृहिणी चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर पड़ोसी दौड़े और आरोपी तांत्रिक को पकड़ लिया। वही उसकी चीख सुनकर पड़ोसी दौड़ पर आरोपी तांत्रिक को पकड़ लिया। उसे नरेंद्रपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोना हलदर नामक के तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। এই তুমি মদ ছাড়াতে পারো, রোগ সারাতে পারো, রোগ সারাতে পারো? হ্যাঁ, এই ব্যবসা কতদিন ধরে চলছে? এই ব্যবসা কবে থেকে চলছে এই ব্যবসা? হ্যাঁ, একটা মেয়ের সাথে এত নোংরামো, এরকম তো অভিযোগ রয়েছে। ভুল অভিযোগ, মেয়ের ছেলের কথা শুনে আপনি নিচ্ছেন ভুল অভিযোগ। হ্যাঁ, আমার কথাটা শুনেছেন আপনি? কিন্তু আপনার মধ্যে অভিযোগ হয়েছে। একজনের সামনে আসেন না। কি হয়েছে আপনার সাথে? আমার ছেলের বন্ধু মাকে দিয়ে আমার ভয় অশান্তি হচ্ছে। এসে জিজ্ঞাসা করলো আমার বাড়িতে যে তুমি তো এখন তোকে কি মারছে? আমি বলছি হ্যাঁ মারটা। তা বলছে আমার হাতে একটা গুণিন আছে, আমি তোকে নাম্বার দেবো, তুই আমার বাড়ি যাস, আমি কথা বলিয়ে দেবো তোকে মদ গাঁজা ছাড়াবার। এক ঘোরা বেশি আমার ঘরেতে ঢুকে তাই ওনার বাড়িতে ডেকে আমাকে ফোন করালো, 15,000 টাকা দিতে হবে, আমাকে ছাড়িয়ে দেবো ওকে মদ খাওয়াটা। আমাকে ডাকলো, ডেকে ফোনে তবে কথা বলিয়ে নিল। নিয়ে তার দুদিন পরে আমার ফোনের নাম্বার ফোন করলো যে দিদি ভাই আপনি কি বাড়িতে আছেন? আমি তোমার বাড়িতে এসে দাঁড়িয়ে আছি। আমি বলছি না আমি তো কাজে আছি, আমি এখন বাড়িতে আসতে পারবো না। তো বলছে তো আমার বর যদি না থাকে আমি এসে গেছি, আমি কাজটা আপনার করে দিয়ে যেতাম আর কি। আমি ঠিক আছে, আপনি যেহেতু এসে যান দাঁড়ান। সকাল 9:30 নাগাদ আমার বাড়ি চলে এসছে। আসার পর হয়েছে ঘটনাটা আপনার স্ত্রীর সাথে? ঘটনাটা কি, আমি একটু নেশামান করি। আমার ওই বন্ধুর মানে আমার ছেলের বন্ধুর কাছে উনি মাথার জমি নাম্বারটা নেয়, আমাকে মদটা স্বামী স্ত্রী ঝগড়াঝাটি অশান্তি হয়, স্বামীটাকে ভালো করা যায় ওই জন্য ওরা যুক্তি দিয়েছিল। সে জানাই হোক টাকা যায় যাক, এত অশান্তি যেমন হচ্ছে তার 2,000 টাকা গেলে আর 2,000 টাকা গেলে যদি স্বামীটা ভালো থাকে থাক, ওই জন্য ওকে ডেকেছিল। আর উনি ওই যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন। যোগাযোগ করার পর বাড়ি এসে উনি তারা আচরণ ব্যবহার করতে চেয়েছিল। তা আমার বাড়িতে দুটো বাচ্চা ছিল বলে আচরণটা করতে পারিনি, ওই জন্যই উনি চলে গেছে। গিয়ে আমার স্ত্রীকে ব্ল্যাকমেল করছে যে তুমি কী কী করেছো। মানে আপনার স্ত্রী একাই ছিল তখন বাড়িতে? হ্যাঁ, বাড়িতে একাই ছিল, দুটো বাচ্চাও ছিল। বাচ্চাটাকে ছিল বলে আজ এই খারাপ কাজটা করতে পারিনি। যদি একাও থাক। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज के सीआरसो राजपथ मैदान में 11 से 15 जनवरी तक कोलफील्ड ट्रेड एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। आज इसे लेकर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के भवन में चेंबर के पदाधिकारियों द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। यहां रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय, सचिव मनोज केसरी, चेयरमैन प्रदीप बाजोरिया ने संवाददाताओं को संबोधित किया। वही सभी को 11 से 15 जनवरी तक सीआरसोल के राजपाड़ी मैदान में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित इस कोलफील्ड ट्रेड एक्सपो में आने का आमंत्रण किया गया। हमारे ऑनरेबल एमएलए श्री तापस बनर्जी जी जो कि चेयरमैन के
ফুলফিল আমাদের অফিস বেরার্স অক্লান্ত পরিশ্রম করে জিনিসটাকে দাঁড় করিয়েছেন। তার সাথে একজন খুব এক্সপিরিয়েন্সড অ্যান্ড ইয়াং আমাদের চেয়ারম্যান আছেন শ্রী মহেশ কুমার খেড়িয়া। তার এই এলাকায় ভালো পরিচিতি আছে, জানাশোনা আছে। তার সুযোগ নিয়ে এরা একটা ভালো জায়গায় দাঁড় করাবার এই ট্রেড ফেয়ারকে চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা জাস্ট এ মডেস্ট বিগিনিং। भविष्य रानीगंज चेंबर ऑफ एक ट्रेड फेयर लगाने का हम लोगों ने निश्चय किया है, जो कि 11 तारीख से राजवाड़ी मैदान में लगाया जा रहा है। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स एक ऐतिहासिक चेंबर है। 63 साल का हमारा इतिहास है। हम लोगों ने बड़ी मेहनत से चेंबर को इस मुकाम पे पहुंचाया है। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स एक बहुत छोटी सी जगह पर है। यहाँ पर ट्रेड फेयर करने का प्रयास हम लोग पिछले 3-4 साल से कर रहे थे, लेकिन 2 साल कोरोना होने के कारण हम लोग 2 साल नहीं कर पाए थे। लास्ट ईयर से हम लोग चेष्टा कर रहे थे। इस साल बीड़ा उठाए हैं और कितना सफल होंगे ये तो आप लोग 11 तारीख और 12 तारीख को देख पाएंगे। हम लोगों ने अभी पिछले 4-5 सालों में ये चेष्टा किया कि हम उद्यमी तैयार करें, यंग इंटरप्रेन्योर को प्रमोट करें। इसी कड़ी में हम लोगों ने 2 साल पहले यंग इंटरप्रेन्योर अवार्ड किया था, जिसमें यहाँ के डीएम साहब और सीओ साहब ने यंग इंटरप्रेन्योर और लेडी इंटरप्रेन्योर को सम्मानित किया था। ट्रेड फेयर कहीं ना कहीं यही उद्देश्य हम लोग चाहते हैं कि यंग इंटरप्रेन्योर ट्रेड के एग्जीक्यूटिव कमेटी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें यह ट्रेड फेयर लगाने का भार दिया। इसका नामकरण हम लोग किए हैं कोलफील्ड ट्रेड एक्सपो 2024। यह रानीगंज के राजबाड़ी मैदान में 11 तारीख से 14 तारीख तक लगने की बात थी। उसको हम लोग एक दिन एक्सटेंशन करने का सोच रहे हैं। और जानते हैं कि हम लोग का नाम है कोलफील्ड ट्रेड एक्सपो। नाम से ही पता चलता है कि हम लोग का मेन उद्देश्य जो है कोलफील्ड से संलग्न जो एरिया है, यहाँ पर जो भी उद्यमी है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, इनके जो पदार्थ है, उनको जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो गुड्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको प्रमोट करने का मेन उद्देश्य है। क्योंकि इन जो हमारे जो लोकल एरिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, इन लोगों के पास सीमित संसाधन है। ये लोग लार्ज स्केल में कोई टीवी में ऐड नहीं दे सकते, न बड़ा बड़ा विज्ञापन दे सकते। तो इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म चेंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से, एक ट्रेड एक्सपो के माध्यम से हम लोग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जहाँ पर एक ही जगह पे, एक ही ग्राउंड में समस्त जो भी यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वगैरह, और जो भी अपना प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, वो अपना विज्ञापन एक जगह पे कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा इसमें आप सब जो लोकल चैनल है वोकल फॉर लोकल, तो आप लोग से भी एक आग्रह करना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ के इसका विज्ञापन करें, ताकि हमारे जो भी यहाँ पे यूनिट है, जो भी MSME या भी जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग का जो प्रोडक्ट है, उसको प्रमोट करने में सहयोग मिल सके। क्योंकि यहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले करेंगे, शोकेस करेंगे, प्लस प्रमोट करेंगे। एक कहावत है, जो फंडा है, मेन फंडा प्रमोशन का, जो दिखता आप हमारे मेयर जी ने कहा कि रानीगंज में पहली बार कोलफील्ड ट्रेड एक्सपो किया जा रहा है। इस ट्रेड एक्सपो का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हमारे रानीगंज में कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, कई छोटे बिजनेस संस्थान है, जिनको एक्सपोजर नहीं मिलता है। हम इस ट्रेड एक्सपो के माध्यम से आसपास के अंचल में उनको हम प्रमोट करना चाहते हैं, हमारे रानीगंज के बिजनेस को हम बढ़ाना चाहते हैं। उसी मकसद से हम ये एक्सपो लगा रहे हैं। इस एक्सपो में हम हर तरह की इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग छोटा सा चनाचूर फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई लेडीज़ लोग घर में केक क्यों ना बनाती हो, हम सबको प्रमोट करने की चेष्टा कर रहे हैं। और इसलिए हमने इस ट्रेड एक्सपो में लगभग 80 to 84 काउंटर्स है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। गेंद समझकर बम से खेलने के दौरान एक मासूम को जान गंवानी पड़ी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। बताया जाता है कि मासूम बच्चा स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद गेंद से खेलने लगा। इस दौरान बम में ब्लास्ट हुआ और मासूम की मौत हो गई। जिले के चोईडांगा गांव में इस घटना के बाद इलाके में शोक की दहशत है।
बम किसने छोड़ा, इस पर बहसबाजी शुरू हो गई है। इलाके के राजनीतिक गलियारों में भी इसकी कवायद चल रही है। बताया जाता है कि दोपहर में मिड डे मील खाने के बाद वह मासूम स्कूल पर जॉगिंग कर रहा था, तभी उसकी नजर मैदान पर गेंद जैसी कोई चीज पर पड़ी। 7 साल का यह मासूम बच्चा गेंद से खेलने लगा। इसी दौरान जोरदार आवाज के साथ गेंद दीवार से टकरा गया। विस्फोट की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां दौड़े, लेकिन मासूम बच्चे को बचाया नहीं जा सका। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह सनसनीखेज घटना मुर्शिदाबाद के दौलताबाद के चोईडांगा गांव में हुई। पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। बम की आवाज सुनकर आसपास के लोग खेत की ओर दौड़े तो वहां मलकेश्वर का घायल शव पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों ने दौलताबाद थाने में सूचना दी। पुलिस ने जाकर उसे बचाया और रशीदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में मुर्दा घर में भेज दिया गया है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। আমরা বাচ্চাদেরকে টিফিন খাওয়ানোর পর মিড ডে মিলের পর আমরা টিফিন করছিলাম এবং পাশে একটা বনভোজনের আয়োজন হয়েছিল। হঠাৎ করে মানে লাউড মিউজিকটা অনেকক্ষণ ধরেই বাজছিল, বাজতে বাজতে হঠাৎ করে একটা পটকা বা যাই হোক বোমার একটা প্রকট শব্দ আমরা শুনতে পাই। তখন বাইরেই ছিলাম আমি এবং আমার সহকর্মী মিঠুন মণ্ডল। হঠাৎ করে বাচ্চাদের সাথে খেলা করছিলাম সেই মুহূর্তে এবং কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করে এক ভদ্রলোক দৌড়ে এসে তখন একটু হতভম্ব হয়েই বলতে থাকেন যে বাচ্চারা কোথায়, বাচ্চারা কোথায়। এবার এক্স্যাক্ট ইনসিডেন্টটা আমাদের জানা ছিল না সেই মুহূর্তে যে কী ঘটে গেছে এই মুহূর্তেই। তারপর তিনি বলতে থাকেন ওই রকমভাবেই যে কী হয়েছে কী হয়েছে। তারপর বলেন যে বাচ্চারা কোথায়, এরকম একটা ইনসিডেন্ট হয়ে গেছে। তখন দৌড়ে যাই এবং একটা যে বোমার শব্দটা আমরা কিছুক্ষণ আগেই পেয়েছিলাম তাতে একটা বাচ্চা ইনজিওর্ড হয়েছে। ইনজিওর্ড না, সবার কাছ থেকে শোনা কথা অন স্পট ডেথ হয়েছে তার, এবং 2-1 বাচ্চা সেখানে যারা ছিল তারা ইনজিওর্ড হয়েছে, এইটুকুই। তখন পুলিশ প্রশাসন এসে নিয়ে গেছেন। ছেলেটার নাম মুকলেশুর শেখ, ক্লাস 2-এ পড়ে, বাড়ি চুয়াডাঙ্গা। আমার নাম জেসমিন। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। ईसीएल केंदा एरिया के सिद्धोली कोलियरी में सिद्धोली बावरीपाड़ा के ग्राम वासियों ने सिद्धोली कोलियरी पीठ पर प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी बिजली और पानी की सप्लाई नियमित करने की मांग कर रहे थे। इन्हीं मांगों को लेकर सिद्धोली कोलियरी में प्रदर्शन किया। इस संबंध में ग्रामवासी स्वपन बावरी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। এক সপ্তাহ ধরে কারেন্ট নেই, কারেন্টের জন্য ছেলে মেয়ে পড়াশোনার অসুবিধা হচ্ছে, কারেন্টের জন্য বাড়িতেও অসুবিধা হচ্ছে, ঘরের সমস্ত কাজ খারাপ হচ্ছে। তারপর এইদিকে আমাদের জলেরও কষ্ট, জল পাচ্ছি না, জলের জন্য জল খাওয়ার জন্য জল পাওয়া যাচ্ছে না, কুয়োতে জল থাকে না। তারপর যে সাইরাতে আমরা যে চান করি সেই চান করে জলটা আমরা পাম্প চলছে না, পাম্প জল না হলে আমরা চান করা অসুবিধা, কাপড়টা সবই অসুবিধা, জলটা একদম না, জল পাচ্ছি না। কতদিন থেকে কারেন্ট নাই আপনাদের? এক সপ্তাহ হয়ে গেল। ইসিএল ম্যানেজমেন্ট কি বলছে? আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি আমাদের লাইনটাও দরকার আর জলেরও দরকার। আপনার পরিচয়? আমি গ্রামের বাসিন্দা। वहीं दूसरी ओर सिद्धोली कोलियरी के प्रबंधक एके चौधरी ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। इलीगल ऑक्युपाइड बहुत ज़्यादा हो गया। हमारा एक तो वर्कर है, 100 इलीगल है, और बिजली का मिसयूज करता है, इलीगल हीटर जलाता है, इलीगल कलर यूज करता है, जिस कारण मेरे ट्रांसफार्मर पर लोड बहुत ज़्यादा है। जो संसाधन है मेरे पास उसमें जो जल गया ट्रांसफार्मर उसको बनने के लिए दिए हैं, वो 1 सप्ताह का समय लिया है। 1 सप्ताह का अंदर उम्मीद है दे देगा।
अभी तक मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूट ट्रांसफार्मर नहीं है। तो अभी 1 सप्ताह का टाइम ले रहे हैं। आपका परिचय? मैं मैनेजर। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। ईसीएल के काजूरा एरिया के पलास स्कूल कोलियारी ईस्ट में कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस की ओर से विभिन्न मांगों और 8 जनवरी को ईसीएल में होने वाली भूख हड़ताल को सफल बनाने के लिए सभा का आयोजन किया गया। इस सभा को संबोधित करते हुए केकेएससी नेता रुपेश यादव ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। लगी हुई तो आज उस ध्वस्त से बचाने के लिए आज देखा हमने 12 सूत्री मांग है, जिसमें 1300 लोगों का डिपेंडेंट जो अनुकंपा के आधार पर जिन्हें काम मिलना चाहिए, जिनके घर के परिवार के लोग, जिनके पिताजी हो, जिनका हस्बैंड हो, पति हो, यहाँ पर काम करते करते डेथ कर गए, उनको 1300 लोग ऐसे बाकी हैं जिनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। ये लज्जाजनक बात है, ये लज्जाजनक बात है। हम लोग फील्ड मीटिंग कर रहे हैं, फील्ड मीटिंग से लोगों में आक्रोश आना चाहिए। ये फील्ड मीटिंग जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके प्रति कुछ भी रवैया अपनाने के लिए तैयार होना चाहिए, कुछ भी, क्योंकि जो लोग जिनका परिवार चला गया काम करते करते, जिनका परिवार। वहीं सभा को संबोधित करते हुए कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के शाखा सचिव सुदर्शन सिन्हा ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। आज फील्ड मीटिंग रखा गया है। उसका मेन उद्देश्य है कि हम लोग का सख्तुरिया घेराव है और 8 तारीख को हैंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल है। भूख हड़ताल पर जाने पर मजबूर कर दिया ये मैनेजमेंट सरकार। आज मोटा मोटी 4 से 5 साल तक 1300 फाइल पड़ा हुआ है, डेथ केस, लैंड लूजर का, बिना कोई प्रॉब्लम का ये फाइल जाकर पड़ा हुआ है। सोच कर देखिए उस परिवार को क्या होगा, जिन परिवार का डेथ कर गए हैं लोग, उन परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा। इसलिए मैनेजमेंट अपना रवैया नहीं सुधार रहा है। ये लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग को मजबूर कर दिया गया है और ये लड़ाई केकेएससी लड़ेगा। आपका परिचय? मेरा परिचय सुदर्शन सिंह, केकेएससी सेक्रेटरी। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज।